Hey, welcome you all on your own learning platform, that is Let's Learn from the Heart. Today we are going to start our new exercise, that is exercise number 4.2. So we are learning today class 8 maths, chapter 4 practical geometry and exercise number 4.2 with question number 1. So again I am telling beta that we are learning today these diagrams also on the page, not on the board. So get ready with your pen, pencil, compass, eraser, sharpener, with everything. And let's start today's question number 1 of exercise 4.2. What is given in question number 1 of exercise 4.2? One number is what? Construct the following quadrilaterals. जैसे हमने exercise 4.1 में किए वैसे ही हमें यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन करना है क्वाड्रिलेटरल्स का. सो फर्स्ट नंबर इज व्हाट? क्वाड्रिलेटरल LIFT लिफ्ट. क्या है? क्वाड्रिलेटरल LIFT लिफ्ट. सम मेजरमेंट्स आर गिवन हियर. LI इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, IF इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, TL is equal to 2.5 centimeter, LF is equal to 4.5 centimeter and last is IT is equal to 4 centimeter. So here enough measurements are given here. 1, 2, 3, 4, 5. 5 measurements are given here. Draw first of all one rough diagram as we draw always. So I am drawing here one rough diagram of quadrilateral. Let's draw like this. इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रही हूँ मैं. ओके. आइडेंटिफाई वेदर एनी डायगोनल इज गिवन हियर. मेजरमेंट ऑफ एनी डायगोनल गिवन हियर. सो LI, ये LI डायगोनल की मेजरमेंट होगी क्या? ये नो. कंटिन्यू में आने वाले डायगोनल नहीं हो सकते. IF, दिस IF नो. TL, T और T के बाद कंटिन्यू फिर से L है, सो TL ऑल्सो नॉट पॉसिबल. Next is LF. This L and F. Yes, this can be a diagonal. This L and this F. Okay, LF एक छोड़ के है ना. That's why this can be a diagonal. And IT. Where is IT? This I and this T. Okay, so these two both measurements may be of a diagonals measurement. तो दो ही diagonal हो सकते हैं इसमें और उससे ज़्यादा तो diagonal होंगे नहीं. तो कोई भी नाम कहीं से भी शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली है. क्या करेंगे? नाम दे देते हैं इस डायग्राम को. सो लेट्स गिव नेम फ्रॉम हियर. आई एम गिविंग फ्रॉम हियर LIF एंड हियर इट इज T. नाम दे दिए. नाउ राइट डाउन इट्स मेजरमेंट. LI इज इक्वल टू, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ LI? LI इज व्हाट? 4 सेंटीमीटर. राइट हियर 4 सेंटीमीटर. देन IF इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. Then TL, where is TL? This is TL. TL is equal to 2.5 centimeter. So write here 2.5 centimeter. Then LF. LF कहाँ है? This L and this F. So this can be a diagonal. Okay. And measurement of its, that is 4.5. And next is what? IT. Where is this I and this T? So join it also. And this can be 4. Okay, so here we have 3 measurements of 3 sides. One it is not given, but we can easily draw it, and 2 diagonals are also given. Start first of all now our main diagram. So what we will do for drawing our main diagram? First of all we will draw this LI. LI is equal to what? 4 centimeter. So take distance of 4 centimeter. ये स्केल में क्या करोगे? सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोगे. कहाँ से स्टार्ट करोगे? 0 से. हियर इट इज माई 0. ये यहाँ पर मेरा 0 है. 0 का डॉट लगा दिया. एंड दिस इज 4. सो 4 का भी डॉट लगा दिया. और अच्छी विजिबिलिटी के लिए एक काम कर सकते हैं हम. क्या करूँगी मैं? स्केच पेन का यूज़ करूँगी. आप लोग स्केल से ही करना, सॉरी आप लोग पेंसिल से ही करना. दिस 2 पॉइंट्स यू कैन सी नाउ. And now what we will do? We will join these both points. हम क्या करेंगे? ये दोनों points को join कर लेंगे. And what will be the name? Here it is L and here it is I. Okay. And what is the measurement? It is 4 centimeter. ये हो जाएगा 4 centimeter. Okay. Now
नाउ व्हाट वी विल डू, फ्रॉम L टू T, यहाँ पर L से इधर T मिलने वाला है हमें, ओके ये I यहाँ पर है, F इधर ऊपर है, मतलब यहाँ पर F कहीं तो भी मिलने वाला है और यहाँ पर कहीं तो भी हमें T मिलने वाला है. So what is the distance from L to T? That is 2.5 centimeter. So what we will do, first of all we will take distance of 2.5 centimeter in our compass, और उससे भी पहले हम अपने स्केल से 2.5 सेंटीमीटर के दो डॉट्स बना लेंगे. Now I am taking distance, here it is 2.5 centimeter. Yes, this distance I have taken here 2.5 centimeter. Okay. यस, नाउ एग्जैक्ट इट इज. कहाँ पर रखेंगे कंपास की नोक कहाँ पर रखेंगे हम, एल के ऊपर, और ऊपर आर्क लगाएंगे क्योंकि ऊपर कहीं तो भी टी है. सो कीप योर कंपास ऑन द एल एंड ड्रॉ एन आर्क ऑन द अप साइड. So this arc I have drawn here of 2.5 centimeter. Now next distance is what, ये तो T के लिए हो गया, बट यहाँ पर हम डायरेक्टली T नाम दे सकते हैं क्या, नो, दैट्स वाई. क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए जो कि अभी तक के मिला नहीं है. तो हम क्या करेंगे, I से ये वाला डिस्टेंस लेंगे. कौन सा है I वाला, ये डिस्टेंस I से लेकर T तक के, IT इट इज़ 4 सेंटीमीटर. यस, IT इज़ व्हाट, दिस 4 सेंटीमीटर. सो 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे. सबसे पहले ये मेरा 0 वाला पॉइंट है, यहाँ पर 4 आ गया ये, ओके. नाउ टेक डिस्टेंस इन योर कंपास एंड हियर आई हैव टेकन दिस 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ओके. नाउ कंपास का नोक कहाँ रखेंगे, कंपास का नोक आई के ऊपर रखेंगे एंड वी विल ड्रॉ वन आर्क, इंटरसेक्टिंग आर्क ऑफ टू दिस प्रीवियस आर्क. सो ड्रॉ इट, आई के ऊपर रखो सबसे पहले कंपास का नोक एंड ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस. सो दिस आर्क हैज़ डन, ओके. यहाँ पे देखो हमें एक मिल गया है इंटरसेक्टिंग पॉइंट. दिस इज आवर इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दैट इज टी. ये नाम क्या हो जाएगा, टी. नाउ जॉइन दिस एल टी एंड आई टी. अब क्या करेंगे, एल टी और आई टी ज्वाइन कर लेते हैं. आई एम ज्वाइनिंग दिस LT, okay, and along and I'm joining this IT also. So I'm using different color because this is diagonal. ओके, T पॉइंट हो गया. अब कौन सा पॉइंट हमें ड्रॉ करना है, F पॉइंट. सो I से लेकर F तक का डिस्टेंस कितना है, ये 3 सेंटीमीटर, ओके. सो नाउ वी विल टेक 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन आर कंपास. डॉट बना लो 3 सेंटीमीटर के, एक 0 पर डॉट लगा रही हूँ मैं, एक 3 पर डॉट लगा रही हूँ, ओके. नाउ मेजर दिस डिस्टेंस. अपने कंपास में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो. यस, एंड दिस हैज़ डन 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ओके. एंड ये 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस वाला जो ये है कंपास है, इसका नोक अभी हम कहाँ रखेंगे, आई के ऊपर, ताकि अभी हमें एफ वाला पॉइंट. आई एम कीपिंग दिस नीडल ऑफ दिस कंपास ऑन द आई, ओके, एंड ड्रॉइंग वन आर्क. नाउ दिस इज एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम आई टू एफ, ओके. आई से एफ के लिए, एफ बनाने के लिए. लेकिन ये यहाँ पर एफ हम तब तक नहीं लिख सकते हैं जब तक हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना मिले. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलने के लिए ये तो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया. ये दूसरा वाला हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ओके. दूसरा वाला अगर हम डायगोनल ये वाला ड्रॉ करते हैं, कितने सेंटीमीटर का है ये, 4.5 सेंटीमीटर का. तो हमें यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा जिससे एफ हमारा तैयार हो जाएगा. सो नाउ 4.5 सेंटीमीटर, ये यही वाला डॉट में यूज़ करिए बेटा, 0 और 4.5 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ पे है मेरा 4.5 सेंटीमीटर. नाउ लेट्स टेक अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर इन द कंपास एंड हियर वी गो. यस, 4.5 सेंटीमीटर कहाँ पर रखेंगे, एल के ऊपर रखेंगे और इस तरह से एक आर्क लगाएंगे, ओके. दिस इज अ आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर.
बट ये हमारी आर्क क्या हो गई, यहाँ पे छोटी होगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिला, तो इस आर्क को क्या करेंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी कितने सेंटीमीटर की थी, 3 सेंटीमीटर की थी। और ये हमारा 3 सेंटीमीटर वाला पहले का डिस्टेंस याद है सभी को, सबसे पहले हमने लिया था। तो ये 3 सेंटीमीटर का दोबारा डिस्टेंस अपने कंपास में लेंगे, ले लिया मैंने, ओके। और इस आर्क को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। yes now see we got here one intersecting point. Let's give name to this point and the name should be F. क्या नाम होगा यहाँ पे, F, okay. Now join this, which one, FI and TF, FI and TF. So first of all we will join here with blue ink. ये intersecting point है F करके, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया F के साथ, IF ज्वाइन हो गया। अब क्या ज्वाइन करेंगे, TFC। इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। यस, नाउ अगेन वन मोर लाइन सेगमेंट वी हैव टू ज्वाइन हियर, दिस LF। कौन सी वाली, LF। L के ऊपर और F के ऊपर स्केल रखो और ज्वाइन करो, वेरी इजी, LF ज्वाइन हो गया। Okay, now this is our diagram. Let's write here measurement of each side. क्या था हमारा, LF था 2 LF नहीं था, क्या था हमारा, LT था। LT कितना, 2.5 सेंटीमीटर। So write here 2.5 सेंटीमीटर। Next is what, LI. This LI is equal to 4 centimeter, already written. Next is IF, 3 centimeter. So here it is 3 centimeter. Now LF, this LF is what, 4.5 centimeter. So this is our LF. Right here 4.5 centimeter. And next is what, TI is equal to 4 centimeter. So this is our TI. Here it is 4 centimeter. We will write here 4 centimeter. Okay. So this is our lift, LIFT, lift quadrilateral final diagram. This is our final diagram. This is our rough diagram. Now what should be our next step? Yes, that writing steps. Have a look on steps of this quadrilateral lift. Okay. सो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक रफ डायग्राम ड्रॉ करी थी। ओके, सो द सेम थिंग आई हैव रिटन हियर। फर्स्ट वी ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट, LIFT। हमने क्या किया था, सबसे पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया था जिसका नाम क्या है, LIFT लिफ्ट। नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर रफ डायग्राम होने के बाद LI लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था ऑफ 4 सेंटीमीटर। Draw a line segment LI is equal to 4 centimeter. Okay. After that फिर हमने क्या किया, L के ऊपर अपने कंपास का नोक रख के, ठीक है, L के ऊपर कंपास का नोक रख के हमने एक T के लिए आर्क लगाई। ओके, दूसरा फिर अच्छा पहले इतना ही लिखा है, देखो थर्ड पॉइंट में, विथ L एज अ सेंटर एंड रेडियस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। ओके, कंपास में हम जो भी डिस्टेंस लेते हैं उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को कौन सा डिस्टेंस बोला जाता है, रेडियस डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके हमने एक आर्क लगाई L से T तक के। ओके, नेक्स्ट फिर हमने I के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमें बस एक ही आर्क मिली थी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो मिला नहीं था, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले इसलिए हमने क्या किया था, फिर कंपास का नोक I पर रख के 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके ये वाली दूसरी आर्क लगाई थी। ओके, सो विथ I एज अ सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क। जो पहले की आर्क लगी हुई थी उसको इंटरसेक्ट करते हुए हमने I से क्या किया, दूसरा आर्क लगाया। ओके, और कंपास में कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया था, दिस 4 सेंटीमीटर। ओके, और उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑल्सो। एंड आफ्टर दिस हमने ये LT और फिर IT, LT और IT क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ये हो गई हमारी 5 स्टेप्स।
ये फर्स्ट ये इतना जो बना था उसके लिए। अब दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए एक ये हमारा ट्रायंगल ही बन गया था। नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर आई के साथ किया। जैसे पहले एल को सेंटर मान के हमने आर किया था, अभी हमने आई को सेंटर मान के एफ के लिए आर्क लगाई। देखो, विथ आई एज द सेंटर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क। हमने कंपास में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, आई के ऊपर कंपास रखा और क्या किया, एक आर्क लगाया। ओके, अब सिर्फ आर्क लगाने से हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है क्या? नो। फिर एल के ऊपर हमने कंपास रख के, एल हमारे कंपास में हमने 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया और क्या की, हमने एक आर्क लगाई इस तरह से एफ के लिए, जो प्रीवियस में जो आर्क लगी थी उसको इंटरसेक्ट करते हुए। विथ एल एज सेंटर एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क। पहले वाली जो आर्क 3 सेंटीमीटर की लगी हुई थी, अभी 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमने क्या करी, दूसरी आर्क लगाई। देन ये आर्क होने के बाद यहाँ पर हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया जिसका नाम क्या है, एफ। फिर हमने सबको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। किस किस को ज्वाइन किया, एल एफ को ज्वाइन किया, आई एफ को ज्वाइन किया, देन टी एफ, ये ऊपर वाली टी एफ, इसको ज्वाइन किया ताकि हमारा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो सके। और इसी तरह से नाउ एट लास्ट वी गेट आवर quadrilateral LIFT lift. Thus we find quadrilateral lift. So this is the question number 1 of exercise 4.2. I hope you understand today's question number 1 of exercise 4.2. If you find any query, if you find any difficulty while drawing this diagram, you can mention it in the comment box below. I would like to solve your queries and I would like to solve your problems. Even you can WhatsApp me also. Very soon we will meet with our question number 2 of the same exercise. Till then, take care of yourself and happy learning. Bye bye. Have a great day.